Very good morning, everyone, once again. So, we are learning about the part of a whole, that means about the fractional numbers, right? हम लोग का लाइव क्लासेस चल रहा है, so we are learning about the fractional numbers. Till now, whatever we have learned is all about the fractional number, about different types of fractional number, what the fractional number is, and we have also yesterday learned how can we show the part of a figure. Okay, so first most important thing today we are going to learn is ordering of fractional number. What does order means? Order means to arrange the numbers in ascending or descending order, or you have to compare the greater and less numbers, fractional numbers. So कैसे हम लोग ऑर्डर कर सक आई मीन कैसे ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, हाउ वी कैन अरेंज इन order, that means either in ascending or descending to of the given fractional number. So first let's start with the like fractional number only. If some like fractional number is given, how we can arrange those in either ascending order or descending order. So before that we would like to revise what the ascending and what the descending means. So we know ascending means to ordering the number in increasing order, starting from the lowest, then greatest one will be the greater, and last at the last it will be the greatest one, right? And descending means decreasing order. So first we will write the greatest one, then smaller, and smallest one will be in the last. तो यहाँ पे suppose I am taking some examples of the fractional number as like 2 divided by 6, then 1 divided by 6, then 4 divided by 6, then 3 divided by 6, then 6 divided by 6 also you can take. So these are the some fractional number which we have taken. Now you have to arrange these all. Suppose I am asking to arrange these all in ascending order. Okay, so ascending order means increasing order. So increasing order means first you have to write the smallest one. So among these all, if you want to see which is the smallest one, first thing is all the like fractions are there. So it is very easy to compare the like fractions. Whatever the numerator, just you have to check the numerator. जो ऊपर वाला डिजिट है उसको सिर्फ चेक करने होते हैं, और इस तरह से जो भी ऊपर वाला टर्म जिसका सबसे छोटा है that will be the smallest number. ठीक है, इन केस ऑफ लाइक फ्रैक्शंस के केस में ही ऐसा होता है कि अगर सारे फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका न्यूमरेटर सबसे कम होगा दैट विल बी द स्मॉलर पार्ट, जिसका सबसे बड़ा होगा दैट विल बी द बिगर पार्ट. इसको समझने के लिए आप लोग पिक्चर ड्रॉ करके भी समझ सकते हो. फॉर एग्जांपल आई एम ड्रॉइंग हियर 1 पिक्चर, 2 पिक्चर, 3, 4. Suppose I am drawing 4 picture and I am dividing these all into 6 parts. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So all of the figure I have divided into 6 part. Now in the first it is saying to 2 part out of 6. So 6 में से कोई भी 2 पार्ट को हमें लेना है. So suppose I am coloring these 2 part and this is the
2/6, ये 2/6 इंडिकेट करता है। उसी तरह से इन केस ऑफ 1/6 वी हैव टू कलर ओनली वन पार्ट, सो दिस इंडिकेट 1/6. In the same way 4/6, so here we'll color 4 part, 1 2 3 4. So this is indicating 4/6. Then 3/6, so 3 will color 1 2 3. So this indicates 3/6. In the same way, if you draw one more, wherein it is asking 6 part out of the 6, 2 3 4 5 6. So 6 out of 6 means all the 6 you have to color or you have to set. So here I am coloring all the 6. So 6 divided by 6. So here you can compare very easily. इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चन में इस तरह से पिक्चर ड्रॉ करके एक्सप्लेन करना है। हमने इसको समझाने के लिए आपको पिक्चर ड्रॉ किया है। तो आपको अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो अरेंज ऑर्डर में इस तरह से होगा बोल के। दिस इज फॉर द एक्सप्लेनेशन, राइट। सो हियर यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो सबसे कम पार्ट इसमें से कौन सा शेडेड है, 1/6। ये वाला जो फिगर है इसमें सबसे कम पार्ट शेडेड है। सो दिस इज द स्मॉलेस्ट वन। तो अगर हम लोग इसको अरेंज करके लिखना चाहते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, सो द फर्स्ट नंबर इट विल बी 1/6। सो सबसे पहला नंबर जो हमारा होगा दैट विल बी 1/6। उसके बाद जो होगा ये होगा 2/6। आफ्टर देन 3/6, आफ्टर देन 4/6 and then finally 6/6. So this will be the increasing order, means ascending order of the fractional number. ascending में अगर बोला जाता है तो इस तरह से हम लोग ascending में मतलब increasing order में लिख सकते हैं। 1/6 पहले, फिर 2/6, then 3/6, then 4/6, then at last 5/6 and then 6/6. 5/6 we have not taken, so 6/6 at the last. And just opposite अगर इसको descending में बोला जाता है decreasing order में, तो हम लोग सबसे पहले 6/6 जो सबसे बड़ा वाला पार्ट है that we will write, then 4/6, then 3/6, 2/6 and 1/6. So this is how we can arrange the numbers or fractional numbers when it is in like fractions. तो like fractions के केस में हम लोग इस तरह से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। Till now anyone having any doubts? मैं यहाँ पे देख रहा हूँ अक्षत has given correct answer. अक्षत ने सही आंसर दिया है। After then सगुन ने भी सही आंसर दिया है। Very nice. So this is how very easily we can compare the two given fractional number which we are having in our chapter. Okay. So this is all about the comparison of fractions which we have in this chapter. We have only the like fractions only. So the questions which we have in exercise 7.4. So let me give one question from this exercise and you all need to do by yourself and tell the correct answer. आपको अपनी तरफ अपने से बना के इसका आंसर बताना है। I am asking the question. So this question is from miscellaneous exercise we can take. So the question is from ME, arrange in the ascending order. So question number 6 I am taking from ME. It is asking arrange in the ascending order. असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। मैं जो नंबर है 15, अच्छा ये मैंने अभी समझाया नहीं है तो इसको करते हैं हम लोग। 7 डिवाइडेड बाई 17, 5 डिवाइडेड बाई 17, 11 डिवाइडेड बाई 17, 13 divided by 17 and 3 divided by 17. So this is the first question of question number 6 which you have to do by yourself. Let me see how many of you can answer. No problem sir. Okay.
सो क्विकली आंसर दिस, हाउ यू हैव टू अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। नंबर दिए हुए हैं 7/17, 5/17, 11/17, 13/17 एंड 3/17. दिस इज ऑल्सो 17. सो यहाँ पे वेरी सिंपली आपको असेंडिंग में पूछ रहा है, इसका मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर को लिखेंगे, जो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शनल नंबर होगा, और उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, और एट द लास्ट वी विल राइट द ग्रेटेस्ट वन. तो लेट मी सी हु कैन आंसर फर्स्ट. आई डिडंट रिसीव एनी आंसर येट from anyone. So quickly answer whoever knowing. I'm giving some time to answer. Okay, I got answer from Akshat. Very nice. So Akshat ने सही आंसर नहीं, अक्षत का आंसर जो है सही नहीं है. देन स्वाति का भी आंसर सही नहीं है. Then Nishant, no, this is not correct. So it's very simple. यहाँ पे हमारा जो नंबर्स दिए हुए हैं, इसको असेंडिंग में करने के लिए सबसे छोटा नंबर हमारे यहाँ पे क्या है, ये 3/17 सबसे छोटा है ना. So first we will write 3/17. 3/17. So because it is asking ascending order, so smallest to greatest. Smallest is 3/17. Then after 3/17, 5/17. So 5/17. Then 7/17. Then 11/17. And at the last 13/17. तो ये हो जाएगा ascending order. Ascending means increasing, smallest to greatest. ओके, सो सबसे पहले 3/17 आएगा, ठीक है. 3/17, then 5/17, 7/17, 11/17 and 13/17 is the greatest one. ओके, तो यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूं, शगुन ने सही आंसर दिया है. वेरी नाइस, शगुन का आंसर सही है. एंड देन स्वाति, यस, नाउ स्वाति's आंसर इज करेक्ट. अभी स्वाति का आंसर सही है. सो ये अभी समझ में आ गया सभी को कि हाउ कैन वी कंपेयर द लाइक फ्रैक्शंस. जब लाइक में रहता है फ्रैक्शनल नंबर, तब कैसे कंपेयर करते हैं. क्या आपको पता है, जब नंबर मतलब न्यूमरेटर, यहाँ पे क्या था कि डिनोमिनेटर सेम था. अगर न्यूमरेटर सेम रहता है तो हम लोग कैसे कंपेयर करते हैं, ये आपको पता है. सो लेट अस टेक एन एग्जांपल वेयर न्यूमरेटर इज सेम. तो जो दूसरा एग्जांपल्स है उसी को लेते हैं हम लोग, जिसमें न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर डिफरेंट है. तो इस केस में क्या होता है, सो 15 divided by 27, then we can take our own examples. So 15 divided by 27, then 28, then 15 divided by 27, 28, then 40, then 15 divided by suppose 16, then 15 divided by, you can take any number, 18, 25 or whatever. So let's take 18 or 19. So ये केस क्या है, जस्ट ऑपोजिट ऑफ दैट. पहले क्या था, डिनोमिनेटर सेम था, तो हम लोग का जो न्यूमरेटर स्मॉलर होता था वो हम लोग का स्मॉलेस्ट नंबर होता था. लेकिन इस केस में क्या होता है, जब न्यूमरेटर सेम होता है, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होता है, दैट इज द ग्रेटेस्ट नंबर, और जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होता है, दैट इज द स्मॉलेस्ट नंबर. ओके, तो यहाँ पे सबसे डिनोमिनेटर सबसे छोटा किसका है, इसका है. सो दैट विल बी द ग्रेटेस्ट नंबर, और डिनोमिनेटर जिसका सबसे बड़ा होगा, दैट विल बी द स्मॉलेस्ट नंबर. तो यहाँ पे सबसे बड़ा डिनोमिनेटर जो है 40 का है, तो 40/15 विल बी द स्मॉलेस्ट नंबर. कैसे होता है ये हमने एक्सप्लेन किया था एक क्वेश्चन में, ठीक है. तो जैसे कि एक एग्जांपल में समझाता हूं, स्मॉलेस्ट एग्जांपल, तब आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा. मान लेते हैं 5 डिवाइडेड बाई 7 एक है, और एक है 5 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है. तो मतलब 5
डिवाइडेड बाय 7 एंड 5 डिवाइडेड बाय 4 मत लेना, 5 डिवाइडेड बाय 9 ले ले, 9, ठीक है। तो यहाँ पे 5 जो है इसको 7 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे जो 5 है इतना ही बड़ा है, लेकिन इसको 9 पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ज्यादा हो गया, एक को मिटा देते हैं, 9। तो यहाँ पे एक को मैंने 7 पार्ट में डिवाइड किया, एक को 9 पार्ट में डिवाइड किया। अब इसका भी हमें 5 पार्ट सेट करना है और इसका भी 5 ही पार्ट सेट करना है। तो 7 में से 5 पार्ट अगर सेट करते हैं तो ये हो गया 1 2 3 4 5, तो इतना टोटल सेट हो जाएगा। अब अगर 9 पार्ट में से 5 पार्ट को सेट करना है तो कितना होगा, 1 2 3 4 5। तो आप देख सकते हो यहां पे जो है इसमें कम एरिया आया, इसमें ज्यादा एरिया कवर किया, इसमें जिसमें डिनोमिनेटर कम था उसमें ज्यादा एरिया कवर किया। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग का 5/7 जो है ये ग्रेटर है। तो उस तरह का केस जहां पे न्यूमरेटर जो होता है वो सेम होता है, उसमें जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है दैट इज द ग्रेटर नंबर, वो बड़ा नंबर होता है, ठीक है। जैसे कि और एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे 6/9 और 6/18, इसमें से बड़ा कौन सा होगा, ये होगा। क्यों बड़ा होगा ये, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है वो छोटा है, तो इसका डिनोमिनेटर छोटा है। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने का नहीं है, सिंपली इसमें जो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर होगा वो सबसे छोटा नंबर होगा, और जिसका सबसे छोटा डिनोमिनेटर है वो सबसे बड़ा नंबर होगा। तो ये कंसेप्ट अगर आप समझे हो तो बहुत ही इजीली इसका आंसर कर सकते हो। सो लेट मी सी हु कैन आंसर फर्स्ट। 15/40, yes, maximum of the students has given correct answer as like Pranav, then Anugya, Swati, then yes Pranav। So very easily हमें देखना है, क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो असेंडिंग मतलब होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब सबसे पहले जो है हमें सबसे छोटा नंबर लिखना है, और जब न्यूमरेटर सेम होता है तो सबसे छोटा नंबर वो होता है जिसका डिनोमिनेटर सबसे ज्यादा बड़ा होता है। तो ये यहाँ पे 40 जो है, तो 15/40 विल बी द ग्रेटेस्ट नंबर, ये सबसे बड़ा नंबर होगा, ठीक है। तो सॉरी, ये सबसे छोटा नंबर होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है 14 से बड़ा कौन सा है, 28 है, तो 15 डिवाइडेड बाय 28, फिर इससे बड़ा 27 हो जाएगा, 27, इसके अलावा 19 हो जाएगा, सो 15/19, और इसके बाद आ जाएगा 15/16। तो इस तरह से हमारा ये जो होगा ये असेंडिंग ऑर्डर में होगा। बहुत ज्यादा गलती यहाँ पे नॉर्मली स्टूडेंट्स का होता है अगर आप अच्छे से इसको कंसेप्ट को नहीं समझते हो तो, ठीक है। न्यूमरेटर अगर सेम होता है और डिनोमिनेटर अलग अलग होता है, तो जिसका सबसे ज्यादा डिनोमिनेटर होता है वो सबसे छोटा नंबर होता है। ये सभी को समझ में आ गया। मैं इसी तरह से एक और क्वेश्चन देता हूं ताकि उससे हमें पता चले कि आप लोग को समझ में आया कि नहीं, ठीक है। चलिए मैं एक क्वेश्चन देता हूं। आई होप दिस वन इज डन एवरीवन। जिसने भी नहीं बनाया है जल्दी से लिख लो, दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। अब हम लोग एक और क्वेश्चन देते हैं यहां पे। सपोज तीसरा क्वेश्चन हम लिखते हैं 4 डिवाइडेड बाय 17, देन 4 डिवाइडेड बाय 13, then 4 divided by 11, then 4 divided by 6, then 4 divided by 5। so इसको आपको जो है अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। क्विकली अरेंज दिस ऑल इन असेंडिंग ऑर्डर। जल्दी से सब कोई ये जो नंबर है इसको असेंडिंग ऑर्डर में इंक्रीज अरेंज कर लें। द नंबर्स आर गिवन 4 डिवाइडेड बाय 17, ये 4 है, 4 डिवाइडेड बाय 17, उसके बाद है 4 डिवाइडेड बाय 13, उसके बाद है 4 डिवाइडेड बाय 11, उसके बाद है 4 डिवाइडेड बाय 6, और उसके बाद फाइनली है 4 डिवाइडेड बाय 5। तो लेट मी सी हु कैन आंसर दिस करेक्टली। कौन जल्दी आंसर कर सकते हैं इसका?
Very easy. 4 by 17, 4 by 13, 4 by 11, 4 by 6 and 4 by 5. So this you have to arrange in ascending order. Ascending matlab increasing order. So I can see Ayush Anand is replying 4 by 17. So 4 by 17 we have already finished. So 4 by 17 is what? 4 by 17 is will be first. Yes, 4 by 17 will be first. Then you have to write all the number in arranging order. I am not only asking the smallest number. I am asking to arrange in ascending order. So you have to arrange. I mean that means you have to write all the numbers. सारे numbers को लिखने हैं. ठीक है, सिर्फ smallest या सिर्फ greatest number को हम लिखने नहीं बोल रहे हैं. आयुष कुमार, your answer is wrong. आयुष कुमार 488. Your answer is not correct. 1 by 17 is wrong. So this is all about how you can arrange. आपको arrange करने हैं, ठीक है? So first I got the answer from Swati. So Swati 4 by this. Yes, Swati's answer is correct. Very nice. Then Sagun's answer is also correct. Sagun का भी answer सही है. Swati and Sagun has answered correctly. Then I got answer from Nishant. Nishant's answer is also correct. Very nice. So इसका मतलब आप लोग को समझ में आया है. Then I got answers from Anugya. Yes, Anugya, correct. So ये सारे answers जो आप लोग दे रहे हो ये सही है. I expect the answer from everyone. सभी के तरफ से आंसर नहीं मिल रहे हैं मेरे को. अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो प्लीज पूछें. You asked in message that you didn't understood. अगर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया, स्पेशली द चैप्टर विच वी आर डिस्कसिंग नाउ. यस, सो देन आई गॉट आंसर्स फ्रॉम प्रणव आनंद आल्सो, विच इज करेक्ट. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. वेरी गुड. दिस इज वेरी सिंपली वी विल राइट फर्स्ट 4 by 17 विच इज द स्मॉलेस्ट वन. सबसे छोटा ये है, ठीक है. अगर आप लोग इसको जो कंपैरिजन वाला नंबर होता है उससे लिखना चाहते हो तो इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है. दिस इज द स्मॉलेस्ट वन. उसके बाद हमारा आता है 4 by 11. सो 4 by 11 आ जाएगा. उसके बाद 4 by 13. 4 by 13 आ जाएगा. उसके बाद हमारा आ जाएगा 4 by 11. उसके बाद आ जाएगा 4 by 6 और एट द लास्ट सबसे बड़ा जो है वो है 4 by 5. ठीक है. तो ये दोनों तरह का क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया कि जब डिनोमिनेटर सेम होता है तब बहुत इजी है. न्यूमरेटर चेक करना है. जिसका न्यूमरेटर ज्यादा है वो ज्यादा बड़ा है और जिसका न्यूमरेटर छोटा है वो ज्यादा छोटा है. और अगर न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर अगर अलग है तो जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा बड़ा है वो सबसे छोटा नंबर है. ठीक है. तो ये हो गया हमारा क्वेश्चंस विच आर रिलेटेड टू दिस चैप्टर. ये चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है. इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, हम लोग का टाइम ओवर हो चुका है, तो रेस्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास. यू बी रेडी फॉर योर नेक्स्ट क्लास. ओके, सो थैंक यू एवरीवन. homework is already given, so I hope you all have gone through the videos also which has been shared, and do your homework on time, send all homework on time and be ready for the next period. Thank you. Have a good time. Take care and bye bye.